اگلی صبح میرے ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ میں نے رات کو ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ سخت سرزنش کے سوا میں پاکستان کو اس کی حرکت کی رپورٹ نہیں کروں گا۔ میری اپنی پوزیشن بہت نازک تھی۔ دشمن ملک میرا ان سے کام لینا بہت کٹن تھا، کیونکہ یہ کسی اتھارٹی کا ان پر حکم چلانا اور حکم عدولی پر ان کو کوئی سزا دینے کا ذریعہ نہ تھا۔ میں اکثر اوقات ان سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرتا اور نفسیاتی طور پر ان کو ہینڈل کرتا، اور اب بھی میں نے نفسیاتی طور پر ہی ان سے نمٹنے کا سوچا تھا۔ گھر پر جا کر میں نے ان چاروں کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ کی اس حرکت سے مجھ پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ ہم سب یہاں اپنے وطن اور قوم کی مفاد کی خاطر جان کی بازی لگا کر آئے ہیں۔ ہم سب کی مشترکہ کوشش سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر معمولی کامیابی سے نوازا ہے۔ یہ سب کامیاب ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ ہر ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے اور میں اپنی ٹیم کا گروپ لیڈر ہوں۔ آپ کے اس اقدام سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بحیثیت گروپ لیڈر مجھے آپ لوگوں کا مجھ پر تعاون حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اتوار کو پاکستان سے آنے والے کوریئر کے ہمراہ میں واپس پاکستان چلا جاؤ۔ جب تک آپ کا نیو گروپ لیڈر آئے آپ لوگ نمبر 2 کے احکامات پر عمل کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اس حرکت کے بارے میں اپنی سینئرز کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں یہ باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا اور چاروں پہلے تو گمسم مجھے تکتے رہے، پھر پٹ پڑے۔ نہیں صاحب، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ آپ جو سزا چاہے ہمیں دے دیں لیکن اپنا یہ فیصلہ بدلے۔ اگر آپ واپس چلے گئے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے واپس پاکی وطن چلے جائیں گے، چاہے وہ ہمیں سزائے موت ہی کیوں نہ دی جائے۔ وہ سب بیک وقت بول رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میں خود پاکستان واپس جانے اور اپنا مشن نامکمل چھوڑ کر جانے کی پاداش میں خود سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جب ان کی منت سماجت بہت بڑھ گئی تو میں نے انہیں کہا کہ اب ایک بار فوج میں بھرتی ہوتے وقت حلف اٹھایا تھا، دوسری بات بھارت آنے سے پہلے اب میں آپ سے حلف تو نہیں اٹھاؤں گا، آپ سے وعدہ کر لوں گا کہ آپ لوگ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گے۔ ان سب نے اپنی ماؤں کے درمیان میں لا کر ایسا وعدہ کیا کہ میں کانپ اٹھا، حالانکہ میں نے ان سے ایسا وعدہ ہرگز دینے کا نہیں کہا تھا۔ پہلے والا ماحول اکثر بدل چکا تھا، ہم سب کی آنکھیں نم تھی۔ میں نے سب کو باری باری گلے لگایا، بارش شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے چائے بنائی، چائے پینے کے بعد ہی لذیذ کھانے کی مہکائی مالکی مکان نے 2 بڑے پراٹھوں میں مختلف قسم کے کھانے لے کر آ گیا۔ سیڑھیوں پر کھڑی اس کی بیٹی کھانا پکا رہی تھی اور انہیں اندر لا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس اچانک میزبانی کا آج کون سا موقع تھا۔ مالکی مکان نے بتایا کہ آج اس کی بڑی بیٹی کی منگنی ہو گئی ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کے ساتھ کرایہ داروں کو شامل نہ کرنا کسی طور پر مناسب نہ تھا، اور پھر ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تو اسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے حقوق کے بارے میں فرما رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھنے لگا تھا کہ ہمسائے وراثت کے بارے میں بھی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں احکام نازل ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی بیٹی کی منگنی پر اسے مبارکباد دی، لذیذ کھانوں کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر 5 بنارسی سوٹ ہمسائے کی بیٹی کی منگنی کی خوشی میں تحفہ دیں گے۔ یوں شام تک ہم بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ صبح کی جو تلخی اب ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوشگوار اور پر اعتماد ماحول نے لے لی تھی۔ یشونت نے حسب معمول ڈاک پہنچا دی تھی اور آئندہ اتوار تک میں فارغ تھا۔ میں نے کرنل شنکر کے پاس جانے کا سوچا اور شام کو ہی اس کی محفل میں اس کے ساتھ تھا۔ آج سے اس کے ساتھ اور بھی شخص تھا۔ کرنل نے میرا اسے تعارف کروایا، وہ اگرہ چونی میں اسٹیشن 6 ریجیمنٹس کا کمانڈر تھا اور ہیڈ آفس میں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ کرنل کی محفل نوش عروج پر تھی تو اس نے جھومتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ونود، اگر تم اپنی بہترین چائے کی پٹیا کسی محفوظ جگہ پر کسی اعتباری شخص کے حوالے کر دو اور وہ پٹیا گم ہو جائے اور تمہیں بعد میں معلوم ہے کہ تمہارا اعتبار آدمی لاپرواہ شخص ہے، تو اپنی اس ناسمجھی کا الزام تم خود کو دیں گے یا اس غافل لاپرواہ شخص کو؟ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، یقیناً میں خود کو مورد الزام ٹھہراؤں گا، کیونکہ جس شخص کے پاس میں نے فیٹیاں رکھی تھی مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی چھان بین کرنی چاہیے تھے۔ بالکل درست، یہی بات میں نے کرنل رنجیت کو کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ لیکن کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں سما رہا۔ Nothing can be put in the brain of this
स्क्वायर हेडेड पर्सन। कर्नल शंकर की इस बेतकल्लुफाना बात से मैंने अंदाजा लगाया कि कर्नल रंजीत इसका पुराना बेतकल्लुफ यार है। शंकर ने रंजीत पर ही अपनी गोलाबारी जारी रखते हुए कहा, रंजीत तुम्हारे कम से कम सज़ा मेरे ख्याल में मुलाजिमत से बर्खास्तगी होगी। फौजी होने की वजह से तुम्हें कोई दूसरा काम तो आता नहीं। अगर तुम कहो तो चाय के कारोबार के सिलसिले में वनूद से तुम्हारी सिफारिश करा देता हूँ। कर्नल रंजीत सर झुकाए शंकर के तमाम जुमले खामोशी से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद शंकर ने खामोशी तोड़े और कहा कि पाकिस्तानी मेजर अहसन और इसके साथियों के गिरफ्तार होने और इनके मरने के बाद भी उन्होंने अपनी रोश न बदली। चंद रोज पिछतरागरे में 2 जासूस पकड़े गए थे। डिवीजन कमांडर उन्हें कर्नल रंजीत के हवाले कर दिया था कि FIU के आदमियों के जरा इनकी तफ्तीश करे। कर्नल रंजीत ने उन्हें बिलावजह सरदर्दी समझते हुए आगरे में DMI के हवाले कर दिया। DMI और FIU के दरमियान हमेशा एक तनाव मौजूद है। DMI वालों ने यहाँ हेडक्वार्टर और आर्मी हेडक्वार्टर्स को मुतला किया। अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ से मैं आगरा गया था, वहाँ DMI वालों को रवैया मेरे साथ हद का मेज था, क्योंकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री को जवाब दे है। मैं इसी रोज वापस चला आया। DMI की दिल्ली के अफसरान अभी आगरा जाने का सोच ही रहे थे कि पाकिस्तानी जासूसों के साथियों ने न सिर्फ उन्हें छुड़वा लिया बल्कि पहरे पर मौजूद हमारे 6 जवानों को भी हलाक कर दिया। अब कर्नल रंजीत को यहाँ जवाब तलबी के लिए बुलाया गया है। इसका GOC भी उसके हमरा IAS भी कर्नल रंजीत की तरह अपनी लापरवाही का जवाब देना होगा। रंजीत मेरा पुराना यार है और मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन आप अपने जनरल के सामने मैं किस हिस्सत से इसकी सफाई दे सकता हूँ। कर्नल रंजीत थोड़ी देर बाद क्लब में अपने अलर्ट शुदा कमरे में चला गया। कर्नल शंकर थोड़ी देर सर उठाए सितारों को देखता रहा और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, वनूद मैं तो हकीकतन पाकिस्तानी जासूसों के फरार और भारतीय फौजियों की हलाकत पर खुश हुआ हूँ। जासूस जिस नजरिया से किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होते हैं उसे बखूबी इल्म होता है कि वो शेरों के जबड़ों में अपना सर रख रहा है और इसके जिंदा लूटने की उम्मीद बहुत कम होती है। गिरफ्तार होने के बाद इसको और इसके साथियों को इसी जज्बे के साथ रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। गिरफ्तार जासूसों को अपनी रिहाई और जिंदा रहने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जब तक वो खुद अपनी जान दांव पर लगा कर रिहाई की कोशिश न करे। तशद्दुद सीख कर अपनी जुबान खोलने और तशद्दुद की वजह से जान देने से बहुत बेहतर है कि वो गिरफ्तार करने वाले की किसी भी कमजोरी को देखे तो इसका भरपूर फायदा उठाए। इस तरह या तो वो फिर बच निकले में कामयाब हो जाएगा या फिर गिरफ्तार करने वालों की गोलियों का निशाना बन जाएगा। गिरफ्तारी के बाद मौत तो इसके सामने मंडलाई ही रहती है, इसलिए मौत का खूब बिल्कुल न करे और अपने बचाव की कोशिश हरगिज़ तुर्क न करे। कर्नल शराब के नशे में तो भारतीय फौज की गफलत का इस वाक़ये में बार बार जिक्र कर रहा था और मैं इसकी बात इंतहाई गौर से सुन रहा था। दुश्मन मुल्क में एक कर्नल मुझे भारतीय समझते हुए अपने मुल्क की ये राज की बातें कर रहा था जो मेरे सीनियर ने मुझे असबर बताई थी। मैं दोनों की बातों का तजिया कर रहा था और तकदीर मुझ पर खंदजन थी क्योंकि मैं खुद इन हालात का शिकार होने वाला था। थोड़ी देर बाद मैंने कर्नल से इजाज़त तलब की। मैं इसके लिए किनाट सर्कस से नमकीन गर्म काजू लेकर गया था। कर्नल ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं अपने होटल वापस आ गया। आइंदा कल यानी इतवार की यशवंत की मुराद बरानी थी। यशवंत ने इस तकरीब में आने की मुझे भरपूर दावत दी थी, लेकिन मैंने माजरत कर ली और इसकी वजह यह बताई कि इसने अपने चंद दोस्तों को मदऊ किया हुआ था जो इसकी असली माली हालत जानते थे। अब यशवंत को 1 लाख दौलत लुटाए हुए देखकर अगर कुछ शक में पड़ गए हो तो वह मुझे एक अजनबी यशवंत के साथ बेतकल्लुफाना पेश आता देखकर इनका शक तो चंद हो सकता था। यशवंत मेरी बात समझ गया। मैं इसे जनरल की सेब कागजात की रकम पहले ही दे चुका था, लिहाजा इसने मेरी माज़ियत कबूल कर ली। मैंने उसे कहा कि तुम देख लिया कि तुम्हारे ताउन का एवज़ाना तुम्हारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा और वक्त पर मिल जाता है। अब समय की वजह से माली ज़रूरत बढ़ जाएगी। अपनी इतनी मेहनत से हासिल करदा खुशी को आरिज़ी न बना देना। समी जैसी औरतें चंद माह में अपने मर्दों को खुशियाँ दे सकती है जो दूसरी सारी ज़िंदगी अपने मर्दों को न दे सकी, क्योंकि समी जैसी औरतों को पेश नज़र बस एक बात होती कि किस तरह अपने आशिक को खुश करके इसकी जेब खाली करे और इसका मकसद को उसूल करे। वो नाज अंदाज का हर हज़बा आजमाती है। मैंने यशवंत को शहंशाह जहांगीर और नूरजहान का वाक़या सुनाया कि अनारकली से अपने इश्क की नाकामी के बाद शहंशाह अकबर का चहीता बेटा शहजादा सलीम एक और कनीज़ मेहरुन्निसा
नूर जहां के इश्क में दीवाना हो गया। तो शहंशाह अकबर ने अपने एक सालार शेर अफगन से नूर जहां की शादी करा के उसे बंगाल का सूबेदार मुकर्रर कर दिया। शहजादा सलीम जो अनारकली और नूर जहां का अशक था, जब जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठा तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि शेर अफगन को कत्ल करवा कर नूर जहां और इसके 6 साल बच्चे को लाहौर में अपने महल में ठहराया और करीबन हर रोज निकाह की पेशकश करता, जैसे नूर जहां बार बार टुकरा देती क्योंकि वो शेर अफगन के साथ निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। वो जहांगीर को शेर अफगन का कातिल समझती थी। जहांगीर जैसे हुसन परस्त की मतलूब मिजाजी में भी अब ठहराव आ चुका था। बलाखिर 3 साल के बाद कोई चारा न देखते हुए इसने निकाह की हामी भर ली। जहांगीर जो कामयाबी से हमकिनार हुआ, इसने अपने पूरे नाम के शोरों में नूरुद्दीन का नूर अपनी चहीती बेगम नूर जहां को अता कर दिया। उसे नूर जहां से दूसरे लफ्ज़ में अपने बादशाही नामों का अवलीन हिस्सा देकर अपनी ज़ात और शहंशाहत में भी अपने ऊपर तरजीह दे दी। आखिरकार बात यहाँ तक पहुंच के जहांगीर ने तस्लीम जामी शराब और कबाब के इवज़ सुल्तानत मेरुन्निसा नूर जहां को दे दी। नूर जहां के नाम के साथ ढलने लगी शाही महर नूर जहां को दे दी गई और नूर जहां इस सुल्तानत की सुरखुसफेद मालिक बन गई। इसी नूर जहां के खुद नोश्ता दास्तान में इसने एतराफ़ किया है कि इसने निकाह के बाद जहांगीर को इस तरह अपनी मोहब्बत के जाल में जकड़ लिया कि तमाम सुल्तानत की मैं मलका बन बैठी। नूर जहां के बकौल जहांगीर जैसे अशक मिजाज को काबू करने के लिए मैंने खुद से न और उन्हें के अल्फाज ही निकाल दिए। वो जहांगीर की इंतहाई फरमान बरदार बीवी थी। शादी के इसने अपने हुस्न व जमाल में कमी न आने दी। जहांगीर के लिए गुलाब का अतर नूर जहां की इजाद है। अगर जहांगीर की पहली 2 बीवी में भी ये अवसाफ होते तो अनारकली या नूर जहां के तरफ रागिब न होता। ये किस्सा मैंने यशवंत को अपने मकासद के हुसूल के लिए सुनाया था। हफ्ते की रोज़ भी यशवंत ने डाक जी से कापिया करके यशवंत को इस दिन वापस कर दी गई और इसके डाक को भी कुरियर के देने वाली डाक में शामिल कर लिया गया था। अगली सुबह स्पेशल कुरियर की आमद थी। हफ्ते की शाम मेरे साथियों ने मुझे बताया कि दिल्ली के बैरून शहर जाने वाली और आने वाले रस्तों बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, होटल सराव, मुस्लिमाबाद की भारतीय खुफिया पुलिस और फौज निगरानी कर रहे थे। ये सुनकर मैंने अपनी साथियों को किसी खास मकसद के अलावा घर से बाहर निकल के मामानियात कर दी। वहाँ से जल्द ही मैं अपनी होटल चले और अपनी सीनियर के नाम खत को आखिरी टच देने लग गया। इतवार की सुबह मेरा एक साथी डाक उठाया और बाकी तीनों हमें कुरियर कवर दिए हुए मतलूबा जगह पर पहुंच गए। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन शहर के बीचों बीच बना हुआ था। रेलवे पटरियों के ऊपर शहर को मिलाने के लिए ओवरहेड ब्रिज है। मैं साथियों को दूसरी जानिब मार्केट में छोड़कर ओवरहेड ब्रिज के ऊपर पहुंचाई था के सामने से कैप्टन अरशद आता दिखाई दिया। कैप्टन अरशद पाक फौज में कराटे का माहिर और दौड़ में पहली पोजीशन रखता था। मेरे ट्रेनिंग के दौरान 1 मील से लेकर 11 मील तक किसी ने ट्रेनिंग करवाई थी। उसे देखकर मेरा जी चाह के उसे लिपट जाओ, लेकिन हालात के तकाजे के मुताबिक हमने आंखों में अलग सलेक की। इसके पास से गुजरते हुए मैंने कहा कि वो आगे गुजरता जाए, मैं चंद लम्हों बाद इसके पीछे आ जाऊंगा। उसी में चाँद से आके बढ़ता गया। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म पर आया, बुक स्टॉल से एक दूर रिसाले ले और वापस बुर्ज की तरफ चल पड़ा। बुर्ज की सीढ़ियाँ उतरते हुए मैंने कैप्टन अरशद को जा लिया। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। कैप्टन अरशद ने मुझे बताया कि इसने अपने साथियों को बुर्ज इस साइड बाजार में छोड़ा और उन्हें 1 घंटे के बाद अमृतसर जाने वाली ट्रेन में वापस जाना है। कैप्टन अरशद ने मुझे बताया कि इसने अपने साथियों को बुर्ज के साइड बाजार में छोड़ा और उन्हें 1 घंटे के बाद अमृतसर जाने वाली ट्रेन में वापस जाना है। अमृतसर वाली बात पर मैंने चुंग बड़ा और कहा कि क्या कोई नया रास्ता तलाश कर लिया है। कैप्टन ने बताया कि अमृतसर से पाकिस्तान जाने का नया रास्ता हाफिज लाहौर का राइशी और पाक भारत सरहद का स्मगलर के कुरियर ने पंडकंजरी के रास्ते दरियाफ्त किया है। भारत की जानिब के 2 स्मगलर्स इनके साथी और वो बॉर्डर से लेकर अमृतसर ट्रेन की रवानगी तक पाकिस्तान मेहमानों को अपनी हिफाजत में लेकर जाते हैं। इनकी तकरीबन रोज़ का मामूल है और अब इस भारतीय स्मगलर्स की लाहौर अहमद वारपसी बॉर्डर तक इनकी हिफाजत जिम्मा लेता है। हमारा इदारा हाफिज को सहूलतें फराहम करते हैं, जिसकी वजह से एक आदमी हमें बॉर्डर के आर पार ले जाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इस रास्ते को चेक करने के लिए कैप्टन अरशद खुद आया। इसने बताया कि मंडी सादिकाबाद गंज से जहाँ से हम भारत में दाखिल हुए थे कि निस्बत ये रास्ता आसान और कम खतरनाक है।
क्योंकि बॉर्डर के दोनों अतराफ एक परलांग के फासले पर गाँव है जिनके रहायशी इस काम में मुलविस है और वही दिल्ली तक आए हैं और वापसी भी लेकर जाएंगे। दौरान गुफ्तगू हम इस रेस्टोरेंट तक जा पहुंचे जहां मेरे साथी बैठे थे। मैं अरशद को अंदर ले गया और साथियों के करीब एक टेबल पर बैठ गया। कैप्टन का भारत यात्रा का गालिबन ये पहला दौरा था। मैंने इशारे से बताया कि मेरी साथी है और हम सब मुसल्लह है। ये सुनकर कैप्टन शकील की परेशानी कुछ कम ही हुई। हमने चाय पिया और मैंने कैप्टन को डाक की अहमियत का मुख्तसर बता दिया और कहा कि मंगल को अपनी खैरियत से पहुंचने का पैगाम ज़रूर दे देना ताकि हम डाक की कापियाँ तलब कर सके। मैंने साथी को इशारा किया। हम टेबल से उठे और हमारे पीछे हमारी साथी भी उठकर फासिला रखते हुए हमें कवर देते हुए चलने लगे। कैप्टन अरशद ने तकरीबन 100 मीटर आगे दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इसके साथी वहाँ बैठे हुए हैं जिनमें एक हवलदार उसे कवर देने के लिए भी है। मैंने कैप्टन को रेस्टोरेंट में जाने का कहा और अपने साथी को इशारा किया जिससे साथी ने डाक उठाई हुई थी वो आगे बढ़ाया और मेरे पीछे चलने लगा। बाकी दो साथी हमें कवर किए हुए थे। इसी अंदाज में मेरा डाक वाला साथी और मैं रेस्टोरेंट के करीब पहुंच गए। मैंने डाक का पिकट से लिया और अंदर जाकर कैप्टन के हवाले किया। कैप्टन ने अपने साथियों में से एक की तरफ इशारा करके बताया कि आइंदा वो कुरियर का काम करेगा। निशानी के तौर पर सब ओके की सूरत में सब्ज रुमाल और खतरे की सूरत में सुर्ख रुमाल गले में बांधे हुए होंगे और मैं ऐसी अपनी जीप में सब्ज और सुर्ख रुमाल रखूंगा। आइंदा की कुरियर और मैं इन्हें एक दूसरे की शक्लें अच्छी तरह पहचान ली। थोड़ी देर बाद कैप्टन से रुखसत होने लगा तो उसने अपनी साथी से डाक का एक पैकेट लेकर मुझे दे जो मैंने अपने नंबर 2 को दे दिया। एक साथी को इसके साथ ही करके पूरी घर पहुंचने का कहा कर रवाना कर दिया जबकि तीसरा साथी और मैं रेलवे प्लेटफार्म पर चले गए। थोड़ी देर बाद कैप्टन अरशद अपनी साथियों समेत आ गया। 10 मिनट तक गाड़ी भी आ गई। वो सारे 2 मुख्तलिफ डब्बों में बैठ गए। गाड़ी रवाना हुई। हम सब ने आंखों में एक दूसरे को अलविदा कहा और हम वापस घर लौट आए। इस दफा की डाक में नहीं है कुरियर का अलावा हमें सख्त तनबीह की गई थी कि वो अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखे। एक माह के अंदर हमारे 2 ग्रुप पकड़े गए। एक ग्रुप तो शहीद हो गया जबकि दूसरा ग्रुप जानलेवा ट्रेनिंग के बाद अपने पहले मिशन के दौरान ही पकड़े जाने पर भारत में काम करने के लिए बेकार हो चुका है। डाक में हमारे घरेलू खतूत भी शामिल थे। हमारे लिए खत किसी ने मत से कम न थे। इन हालात में दियारगीर में घर वालों की खैरियत का पैगाम मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। जनरल की डाक आज भेजी गई थी लिहाजा इस पर कोई तबसरा नहीं था। आज का मरहला भी बखैर आफियत से तय हो गया। मैं शाम तक साथियों को घर रहा। खूब गपशप होती रही। शाम को मालिक मकान ऊपर आए। इसने कहा कि वो मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। ये बड़ी अजीब बात थी। वो मुझे नीचे अपने ड्राइंग रूम में ले गया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता चाय और सिंकर्स आ गए। मालिक मकान ने मुझे चाय बना कर दिया और सिंकर पेश किए और हम दोनों खामोशी से चाय पीने लग गए। मैंने चाय ख़त्म की तो मालिक मकान ने और चाय का पूछते हुए कहा कि मैंने आपको अलहदा बात करने का कहा तो यकीनन मेरे किराएदार और आपको ये बात खटकती होगी लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। कई माह से आपकी आमदोरफ्त और अपने किराएदारों का मुझे ये बताकर किराया पर घर लेना कि वो मुख्तलिफ शहरों से कारोबार के लिए दिल्ली आए। इन कारोबारी औकात में कभी भी घर से बाहर न जाना बड़ी अजीब सी बात लगती है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ न होता तो मुझे बस वक्त पर किराया लेने से गरज होती लेकिन इकट्ठे रहते हुए मुझे इन पर भी निगाह रखनी पड़ती है। मेरी जवान बच्चियाँ और एक ही घर में रहते हुए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और ज़रा खामोश हुआ तो मैंने पूछा कि क्या किराएदारों में से किसी ने कोई हालत हरकत की है। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। इनकी शराफत की तो मैं कसम खा सकता हूँ। वो तो एक तरह से हमारे रखवाले बने हुए। मालिक मकान ने कहकर मेरे वहां को दूर कर दिया। इसने कहा कि जनाब आप ये बात दरअसल ये कि आपके साथ उनकी गुफ्तगू के अंदाज और आपके गैर मौजूदगी में आपकी चीफ के नाम से मुखातिब करना और आपके सर कहते से हमें तो यकीन हो गया कि आप कारोबारी लोग नहीं। ऊपरी मंजिल के बरामदे में बैठ आहिस्ता की वो गुफ्तगू भी हमें नीचे सुनाई देती है। जो कुछ हमारी समझ में आया कि इन गुफ्तगू हमेशा मिशन की तकमील और डाक के मुतल्लक होती है। मेरी छोटी बच्ची चंद रोज पहले सामने वाले के घर के बच्चे के साथ खेलने गई तो वो दोनों चौबारे के खिड़की में से देख रही थी तो हमारे किराएदारों ने सामने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया मगर खिड़की खुली रखी और खिड़की के रास्ते देखते रहे कि आपके साथियों ने एक मशीन निकाली और बिजली से उसे कनेक्ट किया
एरियल की एक तार पहले ही खिड़की से बाहर निकाली हुई थी। उन्होंने इस मशीन से टेलीग्राम देने वाले एक आले का इस्तेमाल शुरू किया, जबकि कानों से हेडफोन लगाए हुए किराएदार कुछ लिखता भी जानता था। 15 मिनट तक इसने मशीन को इस्तेमाल किया, फिर कई छुपा कर दरवाज़ा खोल दिया। मालिकी मकान की जुबान ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने खुद पर काबू पाने की बार कोशिश की, मगर मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को मालिकी मकान ने भी महसूस कर लिया होगा। मैंने तूक निगलते हुए पूछा कि आपने इस बात से किया नतीजा अखज़ किया। मालिक मकान ने जवाब दिया कि आप या तो गैर मुल्की या पाकिस्तानी है या किसी गैर मुल्की के लिए काम कर रहे हैं। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपको अगर यकीन है कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये सुनहरी मौका है। पुलिस को इतला दे कि हमें पकड़वा कर आप न सिर्फ खासे बड़े इनाम के हकदार बन सकते हैं, बल्कि भारत से नाकाबिल तरदीद वफादारी का सबूत भी दे सकते हैं। मेरे अल्फाज डूबते हुए शख्स की आखिरी कोशिश के मुतरादिब थे। मालिक मकान ने मेरी बात सुनते ही ला हौला वला कुव्वत पड़ा और कहा, जनाब मैं आपको नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी सोच ऐसी होती तो आज तक आप लोग पुलिस या फौज की कस्टडी में होते। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और सारी दुनिया के मुसलमान हमारे भाई है, और ख़ासकर पाकिस्तान के मुसलमान तो हमारा कबीला है। हम दिल्ली के पंजाबी सौदागरान फैमिली से है। पाकिस्तान में भी हमारी वसी रिश्तेदारी है। आपने कैसे समझ लिया हम आपको पकड़वा देंगे कि जनाब वाला मैं ये आपके मुतल्लक यकीन करके कि वाकई आप पाकिस्तान के मफाद के लिए काम कर रहे हैं तो दिल्ली में इन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो ज़ेर ज़मीन पाकिस्तान के मफाद के लिए काम कर रहे हैं, और वो कोई भी ऐसा मुक़ाज़ा नहीं करते जिनसे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचता हो। मेरे लिए मालिक मकान की बातें इतनी गैर मुतवक्की थी कि मेरे पूरी तौर पर ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँ। चंद मिनट तो मैं इसी खामोशी से देखता रहा, और इसी दौरान सैकड़ों मुस्बत और मनफी ख्यालात इसके मुतल्लक मेरे ज़हन में आए। वो हमारी असलियत और ट्रांसमीटर के मुतल्लक जान चुका था। ऐसी सूरत हाल में दरपेश आने पर जो हिदायत हमें दी गई थी इसके मुताबिक तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए था। इसके साथ मुझे यशवंत भी याद आ गया जो अपनी जान और अगराज व मकासद की हमारे लिए साथ ताउन कर रहा था। मैंने खामोशी के इन चंद मिनटों में बहुत कुछ सोचा और आखिरकार इस ज़हनी कशमकश से निकल कर एक फैसला किया। मैंने मालिक मकान को मुखातिब करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं फ़िलहाल अपने और अपने साथियों के मुतल्लक सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो कुछ आपने सोचा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम अपनी जान हथेली पर रख कर ये काम कर रहे हैं, और अपने काम में रुकावट डालने वाले किसी भी हस्ती को मिटाने में हम किसी किस्म की कोई झिझक नहीं है, लेकिन अपने वतन की खामियों के लिए अपनी जानें भी लड़ाने के लिए तैयार है। अपने हमारी हकीकत जानने के बावजूद जो रवैया अपनाया है इसमें तो कोई शक नहीं कि आप मुखलिस से आप ज़ेर ज़मीन हमदर्दों का जिक्र किया। इम्कान हो सकता है कि इनमें कुछ काली वीडियो भी हो। जानों से बहुत ज़्यादा अहम हमारा मिशन है, लिहाजा आप इनको हमारी असलियत के मुतल्लिक कुछ न बताएं और हमें इनसे मिलवाया। हम खुद इनके अपने तरीके से टूक बजा कर देख लेंगे। आप इनको हमारे मुतल्लिक बस ये बताएं कि ये भी हमारे हम ख्याल है, भाई है, मुसलमान है। उनको ये भी न बताए कि हम आपके किराएदार हैं। मैं जाने के लिए उठा तो मालिक मकान ने मुझे गले से लगाई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, पाकिस्तान भी हम भारतीय मुसलमानों की आखिरी उम्मीद है। मशरक़ी पाकिस्तान में भारत ने जो अंदरूनी गड़बड़ के बाद इससे भारतीय मुसलमान की आंखों की खुल चुकी है और चाणक्य के पैरोकारों के असल रूप सामने आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।